Good morning, dear students. I hope you all are fine. So, let us continue with our lesson that we had started, that is forests, which is our lifeline. Yes? So, we have seen forest, which is our lifeline. There are so many kinds of plants, there are so many kinds of animals in the forest, and we have seen that they all are grouped into certain types, and also they all are dependent on each other, and indirectly we are dependent on forest for so many of the purposes, right? Like for so many of the products that we get from the forest. So let us continue with that. Now, as I was saying, there are so many types of plants and animals, the living organisms who are living in the forest. Okay, now for that you well known about these things, herbivores. Like I said, the plants which produce their own food, they are herbivores, right? Herbivores, those are the animals who feed on the plants, right? Herbivores like the grasshoppers, like the deer, which exclusively they feed on the green plants. So they all are the herbivores. Okay, then comes the carnivores. Carnivores जो exclusively किस पे feed करते हैं? They feed only on the flesh, like lion, tiger and all. So those animals, they exclusively they feed only on the other animals, the flesh of other animals. They are called as carnivores. और third type है omnivores, जो feed on both, like the human beings, they feed on both the things. There are few animals who feed on both the things, like on the flesh also and on the green plants also. So they are called as the omnivores. Now as you see, in the forest जहाँ पे there is a variety of plants, तो herbivores तो होंगे जो प्लांट्स पे फीड करते हैं, which feed on the green plants and trees and grass. herbivores तो वहाँ पे होंगे क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे प्लांट्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, और क्योंकि वहाँ पे herbivores है तो उनको खाने वाले carnivores भी वहाँ पे होंगे, राइट? एंड ऑफ कोर्स omnivores विल बी देयर क्योंकि उनको फ्लैश भी अवेलेबल है और उनको green vegetation भी अवेलेबल है. सो omnivores will also be present over there. So you see, फॉरेस्ट जो है वो हर एक टाइप के लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिमांड कंप्लीट करता है. इसीलिए यू सी देयर आर सो मेनी काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड ऑल्सो एनिमल्स प्रेजेंट इन देयर. एंड ऑल्सो डिकम्पोजर्स, जब ये सारे when they all, like all, not all, but when the animals and plants they die, so that are decomposed by the decomposers, which are the microorganisms. तो फॉरेस्ट जो है वो हर एक टाइप के लिविंग थिंग को इंक्लूड करता है, हर एक लिविंग थिंग की नीड्स कंप्लीट करता है. सो फॉरेस्ट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी. इट इज़ अ डायनामिक लिविंग एंटिटी क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, एंड दैट इज़ फुल ऑफ लाइफ एंड वाइटलिटी. यस, सो see, the next importance of forest is that the balance of oxygen and carbon dioxide in the atmosphere is maintained by forest. अब कैसे? तो देखो, plants जब respiration, like plants and animals, we all, that means living organism का ये characteristic ही है respiration. So when plants and animals do respiration, तो वो क्या करते हैं? They inhale oxygen and they exhale carbon dioxide. तो ऑक्सीजन तो इनहेल कर दिया, ओके. फिर इसके बाद ये ऑक्सीजन जो हम इनहेल करते हैं वो कहाँ से मिलता है हमको? ऑफ कोर्स दैट वी गेट फ्रॉम द प्लांट्स. सोचो ना, एटमॉस्फेयर में इतना सारा ऑक्सीजन है, इतने सारे लोग, इतने सारे एनिमल्स है, सारे प्लांट्स को भी लगता है ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन. सो इफ ऑल आर टेकिंग ऑक्सीजन तो वो ख़त्म ना हो जाए एक दिन, बट इट नेवर एंड्स. व्हाई? बिकॉज जो प्लांट्स होते हैं व्हेन दे डू फोटोसिंथेसिस, दैट मीन्स व्हेन दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, तो फूड के साथ साथ वो क्या बनाते हैं? ऑक्सीजन भी बनाते हैं. एंड दैट ऑक्सीजन जो उनको जितना लगता है वो खुद ले लेंगे फॉर देयर ओन रेस्पिरेशन, एंड द रिमेनिंग ऑक्सीजन दे रिलीज इनटू द एटमॉस्फेयर. तो ये ऑक्सीजन जो प्लांट कंटिन्यूसली एटमॉस्फेयर में रिलीज कर रहे हैं, वही ऑक्सीजन हम लोग कंटिन्यूसली यूज़ कर रहे हैं, राइट? और हम जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ करते हैं वो कहाँ जाता है इतना सारा? तो प्लांट्स जो होते हैं व्हेन दे डू फोटोसिंथेसिस, तो दे टेक कार्बन डाइऑक्साइड, दे नीड कार्बन डाइऑक्साइड फॉर फोटोसिंथेसिस. तो वो क्या करेंगे? कार्बन डाइऑक्साइड ले लेंगे और ऑक्सीजन रिलीज करेंगे इनटू द एटमॉस्फेयर. एंड वी डू द अपोजिट. प्लांट है जो ऑक्सीजन एटमॉस्फेयर में रिलीज़ किया है वो हम ले लेंगे, और हमने जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज़ किया है वो प्लांट्स ले लेंगे.
सो यू सी हाउ ब्यूटीफुल द नेचर इज़, राइट। और जो प्लांट्स है वो ही मेंटेन करते हैं हमारा एटमॉस्फेयर का बैलेंस या हमारे बायोस्फीयर का बैलेंस। सो द फॉरेस्ट जो है दे आर कॉल्ड एज द ग्रीन लंग्स, दे आर कॉल्ड ग्रीन लंग्स बिकॉज दे प्रोवाइड दे प्रोवाइड ऑक्सीजन टू अस, और सारा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो खुद ले लेते हैं। सो यू सी प्लांट्स आर दैट इम्पॉर्टेंट टू अस। यू कैन सी इट इज शोन इन द फिगर। ऑक्सीजन प्लांट्स ने फोटोसिंथेसिस किया, तो while photosynthesis what they have taken carbon dioxide and they have released oxygen, and you see how beautifully there are so many types. Okay, ये forest तो नहीं है but okay it's kind of forest, so many types of plants, animals है, and also there is a river which is flowing over there. Then okay, other than this also there are so many importance of forest. List कम पड़ेगी इतने importance है. Like if you want to list out few important like characteristics or important uses of forest. So forest is a natural habitat पहले तो for a very large number of plants and animals. बहुत सारे plants and animals naturally उस forest में रहते हैं, right? And forest also help in maintaining oxygen and carbon dioxide balance, जो हमने अभी देखा वो तो सबसे important है, right? Then forest helps in bringing the good rainfall, क्योंकि क्या होता है you know trees अगर जितने ज़्यादा लगाते हैं उतना रेनफॉल अच्छा होता है। ओके, सो दैट इज डायरेक्टली रिलेटेड। रेनफॉल अच्छा है तो वी विल गेट सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। रेनफॉल नहीं हुआ, ओके, बिकॉज देयर इज गुड रेनफॉल सो वी विल गेट गुड अमाउंट ऑफ वाटर टू ड्रिंक। एग्रीकल्चर है so the croplands will grow well, right? So this is all very very important. Then forest also helps us to protect the soil from erosion. क्या होता है जो सॉइल जो प्लांट्स होते हैं, प्लांट्स के जो रूट्स होते हैं वो क्या करते हैं, विच ग्रो ऑफ कोर्स इन द सॉइल। द रूट्स व्हेन दे गो डीप इनसाइड द सॉइल, वो सॉइल को पकड़ के रखते हैं, दे होल्ड द सॉइल। तो क्या होता है एक्चुअली सॉइल इरोजन क्या है ये आपने सीखा है, सॉइल जो है वो उड़ जाती है, द सॉइल it goes and with the wind, of course with the wind current the soil will go to some other place. तो क्या होगा, सॉइल इस एक एरिया की सॉइल जो है वो उड़ के दूसरी तरफ जा रही है, तो दैट इज कॉल्ड सॉइल इरोजन। ये नहीं होना चाहिए। अगर प्लांट्स लगाएंगे हम लोग तो क्या होगा, वो जो सॉइल है वो रूट्स जो है वो फॉर्मली उस सॉइल को पकड़ के रखते हैं, तो वो सॉइल उड़ के नहीं जाएगी, तो सॉइल इरोजन नहीं होगा, राइट। इसीलिए द प्लांट्स इट प्रिवेंट्स सॉइल इरोजन, इसीलिए प्लांट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देन फॉरेस्ट क्या करता है, जैसे ही सॉइल को पकड़ के रखता है वैसे ही इट एब्जॉर्ब्स द रेन वाटर। उसने क्या किया, रेन वाटर एब्जॉर्ब कर लिया और वो रेन वाटर कहाँ पे गया, सॉइल में गया, तो ग्राउंड वाटर लेवल जो है वाटर की वो भी बढ़ गई एंड वी गेट द वाटर। ओके, तो सप्लाई ऑफ वाटर हमको मिलते रहता है। वी ऑल्सो इन द फर्स्ट ओनली आई सेड कि वी गेट सम मेडिसिनल प्लांट्स, टिम्बर एंड सो मेनी यूजफुल प्रोडक्ट्स जो हमने ऑलरेडी देखे हुए हैं। देन मेनी पीपल दे लिव इन द फॉरेस्ट एंड फॉरेस्ट फिर उनको फूड, फॉरेस्ट प्रोवाइड्स देम फूड, वाटर, शेल्टर, मेडिसिन, सब कुछ उनको मिल जाता है। सम पीपल दे लिव इन द फॉरेस्ट। ओके, सो यू सी दैट मच इम्पोर्टेंस इज we have in our life of the forest, and forest acts as a natural absorber of rain water as I said। क्या होता है, और ऑल्सो वो वाटर मतलब क्योंकि उसने एब्जॉर्ब कर लिया पानी सारे प्लांट्स ने, तो द वाटर लेवल जो होता है पूरे ईयर तक वो वाटर टेबल बराबर रहता है। मतलब क्या होता है, सॉइल के अंदर पानी परकोलेट होगा और वो पानी वहीं पे रहेगा, तो वी विल गेट द वाटर ना, हमेशा वाटर हमको क्या होगा, अवेलेबल होगा, राइट। और फॉरेस्ट जो है आप सोचो इतने बड़े बड़े ट्रीज है, तो पानी अगर फ्लड आई सपोज, तो वो पानी को कौन रोकेगा, ओके। तो जो फॉरेस्ट के जो बड़े बड़े ट्रीज है वो रोक सकते हैं, क्योंकि बीच में वो ऑब्स्टेकल्स होते हैं, पानी बहुत फोर्स से आ रहा है, लेकिन वहाँ पे अगर फॉरेस्ट है, बीच में बहुत सारे ट्रीज है, तो पानी क्या होगा वहाँ पे, द वाटर विल हैव ऑब्स्टेकल ऑफ द ट्रीज, तो पानी बहना रुक जाएगा या फिर उसकी स्पीड कम हो जाएगी और उससे आगे जो कुछ भी डिस्ट्रक्शन होने वाला है वो नहीं होगा। इसीलिए फॉरेस्ट है वेरी इंपॉर्टेंट टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन, टू प्रिवेंट द फ्लड एंड ऑल्सो टू सेव द वाटर, राइट, इट इज़ इम्पॉर्टेंट। ऑन द अदर हैंड अगर ट्रीज नहीं होंगे तो क्या होगा, फ्लड आएगी, लाइक अगर फ्लड आ रही है तो वो कौन रोकेगा उसको, राइट। फिर रेन जो है वो डायरेक्टली रेन, क्योंकि वो इट
absorbs the water. अगर ये ट्रीज ही नहीं रहेंगे तो रेन जो है वो डायरेक्टली ग्राउंड पे आएगी और उससे फ्लड भी हो सकती है, राइट. और हेवी रेन अगर हुई तो सॉइल डैमेज हो सकती है एंड देयर आर सो मेनी थिंग्स विच विल हैपन. सो दैट इज़ व्हाट, इफ फॉरेस्ट विल डिसअपियर तो क्या होगा. तो पहले तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की जो लेवल ट्रीज की वजह से मेंटेन है वो मेंटेन नहीं हो पाएगी, राइट. और दैट विल इंक्रीज दी अर्थ्स टेम्परेचर. Or in the absence of trees and the plants, animals will not get food, they will not get shelter, where will they go. And also in the absence of trees, soil जो है will not hold water, तो पानी जो है वो बह जाएगा, it will go into the river, from river it will directly go into the sea, and we will not have sufficient amount of water. रेन तो साल में एक ही बार होती है, लेकिन पूरा साल हमें वही पानी जो स्टोर हुआ है वो हमें यूज़ करना होता है. इसीलिए सॉइल जो है वो पानी जो है वो सॉइल के अंदर परकोलेट होना इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और दैट इज़ डन ओनली एंड ओनली बाय द प्लांट्स. हम भी कर सकते हैं जो हमने देखा था इन द प्रीवियस चैप्टर, इफ़ यू रिमेंबर. देन इफ़ वी डू डिफॉरेस्टेशन इट विल एंडेंजर आवर लाइफ अल्टीमेटली, और पूरा एनवायरनमेंट. हमने देखा ना, प्लांट्स पे कुछ एनिमल्स, उन एनिमल्स पे दूसरे एनिमल्स, एंड वी ऑल्सो डिपेंड ऑन प्लांट फॉर वेरियस प्रोडक्ट्स दैट दे गिव टू अस. तो पूरा जो एनवायरनमेंट है उसका बैलेंस जो है वो इम्बैलेंस हो जाएगा. इसीलिए अभी एटमॉस्फेयर में जो है, अर्थ पे जो है वो सारा कुछ इम्पोर्टेंट है. एक भी ऐसा फैक्टर नहीं है, कोई भी एनिमल, कोई भी प्लांट, कुछ भी ऐसा नहीं है जो मैटर नहीं करता. एवरीथिंग मैटर्स एंड एवरीथिंग इज इम्पॉर्टेंट. ओके, so we must take care of our forest and we should not cut the forest. trees को जितना सेव करें, ट्रीज से जो प्रोडक्ट्स मिलते हैं वो जितना कम से कम जितना हो उतना हम कम यूज़ कर सकते हैं. एंड वी कैन प्रिजर्व द फॉरेस्ट, वी कैन टेक केयर ऑफ द फॉरेस्ट, एंड वी कैन टेक केयर ऑफ आवर एनवायरनमेंट, एंड वी कैन टेक केयर ऑफ आवरसेल्व्स. सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, स्टे सेफ, स्टे होम, एंड प्लांट द ट्रीज. ओके, गुड बाय.